नमस्कार दोस्तों। आज मैं वॉल्यूम 2 थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देखता हूँ। पहला टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑन जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर्म द बेसिस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा। Zeroth law of thermodynamics form the basis of the measurement of temperature. This law states that when the two bodies are in thermal equilibrium with the third body, they are also in the thermal equilibrium with each other. First law of thermodynamics defines the internal energy. Second law of thermodynamics defines the entropy of the system. Next question. During throttling process, the D नंबर हो जाएगा, the enthalpy does not change. देखते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या है। In this process, flow of the fluid through the some restricted or partially open or porous body or very small opening, it is also known as constant enthalpy process or isenthalpic process. Characteristic of the throttling process: no work transfer, no heat transfer. It is irreversible process. It is isenthalpic process. Next question. Which of the following is the extensive property of the thermodynamic system? Extensive property volume हो जाएगा. Volume is a extensive property. Property can be classified on the basis of size or extent of the system. प्रॉपर्टीज दो टाइप का होता है, एक हो गया इंटेंसिव, दूसरा हो गया एक्सटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब हो गया डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज या फिर मास। एक्सटेंसिव डिपेंड ऑन द साइज। एग्जाम्पल के लिए इंटेंसिव में हो गया प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, डायनेस फ्रैक्शन। और एक्सटेंसिव में क्या गया वॉल्यूम, मास, एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन ही नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हीट एंड वर्क आर क्या हो गया है, तो पाथ फंक्शन हो जाएगा हीट एंड वर्क। Heat energy that is transferred from one body to another as the result of difference in the temperature. Heat flow from the hotter body to the colder body. Temperature क्या? The temperature is a physical quantity that expresses hot or cold. Heat and work are path function. These are denoted by dynamic path. So it is an inexact and imperfect differential. Next question. Control volume in the thermodynamic system refers to fixed region in a space from the thermodynamic study. ये सी नंबर आंसर। क्या है कंट्रोल वॉल्यूम? देखिए कंट्रोल वॉल्यूम इन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम refers to fixed region in a space or thermodynamic study. This system has no any definite boundaries, that is it has an imaginary boundary. Turbine, impeller, pump, compressor, etc. are held in the category of control volume system. Next question. A closed system, a closed thermodynamic system is one which there is no mass transfer but energy transfer exists. जहाँ एनर्जी ट्रांसफर एग्जिट करेगा, मास ट्रांसफर नहीं होगा, वो होगा क्लोज सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है? कह रहा है इट इज ए रीजन in the space upon which the study analysis is focused. Boundary, it is the separation between the system and the surrounding. Types of system क्या है? एक होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सिस्टम, तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम।
ठीक है। तो ओपन सिस्टम में क्या है, इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम बोथ मास एंड एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस। टर्बाइन, पंप, piston cylinder, arrangement with the valve. Most of the engineering devices are open system. Closed system क्या है? A system is said to be closed system. There is no mass transfer but energy transfer takes place. Example के लिए rigid closed container with conductive walls, piston cylinder, arrangement without valve. नेक्स्ट है आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, तो देयर इज नो मास एज वेल एज एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस, जैसे यूनिवर्स हो गया, हॉट फ्लूइड इन द परफेक्ट इंसुलेटेड फ्लास्क या कंटेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज इंडिकेटेड द सिंगल रिवेटेड जॉइंट। देखिए दोस्तों, सिंगल रिवेटेड जॉइंट होना चाहिए, तो आपका हो जाएगा बी नंबर आंसर। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये जो है डबल रिवेट है और लैप जॉइंट है, एक दूसरे के ऊपर है तो लैप जॉइंट हो गया। ये देखिएगा सिंगल रिवेट है और एक दूसरे के ऊपर है तो लैप जॉइंट हो गया, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। ये देखिएगा दो प्लेट के बीच में जोड़ा गया है रख कर, तो इसको डबल रिवेटेड कर देंगे, लेकिन एक दूसरे के ऊपर नहीं है, उसके बीच में कुछ और भी है, इसलिए बट जॉइंट हो गया। ठीक है, ये ये है लैप जॉइंट, फिर से ये एक दूसरे के ऊपर है लेकिन डबल है, तो डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है fill in the blanks with the appropriate answer. Dash system is exemplified by a jet engine. जेट इंजन क्या है, तो कांस्टेंट मास सिस्टम है। क्या है, कांस्टेंट मास सिस्टम है। कांस्टेंट मास सिस्टम इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय द जेट इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन आइडियल गैस इज फॉल्स। आइडियल गैस के अबाउट क्या फॉल्स है, तो कह रहा है डी नंबर, कह रहा है प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड इंट्रैक्शन। ये आइडियल गैस के बारे में गलत है, कहता है कि प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता है आइडियल गैस में और इंट्रैक्शन भी नहीं होता है। ठीक है, ideal gas has no molecular force of attraction or repulsion, or there are absence of intermolecular force and interaction. The total volume of the individual molecule is lesser or negligible than the volume that the gas occupy. Its motion is frictionless. The follow all the gas law. Example Charles law, Boyle's law, Gay-Lussac's law. Enthalpy क्या है, enthalpy is the internal energy plus product of pressure and volume. Enthalpy is the addition of internal energy and the product of pressure volume. Enthalpy equal to internal energy plus product of pressure and volume. इंटरनल एनर्जी क्या है, ये है, और एक्सटर्नल एनर्जी ये है, जिसे फ्लो वर्क होता है। इंथैल्पी इज द कंपाउंड प्रॉपर्टी। इंथैल्पी क्या है, कंपाउंड प्रॉपर्टी है फॉर आइडियल गैस डी एच इक्वल टू सी पी डेल्टा टी फॉर यूनिट मास के लिए, और टोटल मास के लिए एम सी पी डेल्टा टी हो जाता है। नेक्स्ट आइएगा, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे हो जाता है, बी नंबर आंसर। इंटरनल एनर्जी represent the total energy associated with molecule. We know that for an ideal gas U equal to mCV delta T. ठीक है, the above equation is valid for an ideal gas undergoing any process. According to Joule's law, internal energy of an ideal gas is the function of temperature only. Next question कह रहा है the area under the TS diagram curve at any thermodynamic process represent the heat absorbed or rejected. ये जो एरिया देख रहे हैं दोस्तों टी टेम्परेचर और एंट्रोपी का, द एरिया अंडर द TS डायग्राम कर्व एट एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस रिप्रेजेंट हीट एब्जॉर्ब एंड रिजेक्टेड।
देखिए डी डेल क्यू इक्वल टू टी डी एस हो जाता है द एरिया अंडर द पी वी डायग्राम कर्व एट द एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस रिप्रेजेंट द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस। एरिया बोला जाए पी इंटू डेल भी, ये आपको वर्क डन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोलेटेड सिस्टम इंडिकेट, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहते हैं? इसका हो जाएगा डी नंबर, बोथ मास एंड एनर्जी of the substance does not cross the boundary। Isolated system indicate the both mass and energy of the substance does not cross the boundary। एग्जाम्पल के लिए थर्मोफ्लास्क, कैसेरोल, thermodynamic universe। System are classified on the basis of the mass flow and the energy flow across the boundary। देखेंगे सिस्टम, क्लोज सिस्टम क्या होता है कि मास नॉट क्रॉस एंड एनर्जी क्रॉस। ओपन क्या हो गया, बोथ क्रॉस, मास क्रॉस एंड एनर्जी क्रॉस। आइसोलेटेड में नाइदर क्रॉस नॉर क्रॉस, जिससे कि नॉट क्रॉस मास नॉट क्रॉस एनर्जी। नेक्स्ट कह रहा है ए प्रोसेस इन विच नो हीट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। जहाँ हीट क्रॉस नहीं करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग आइसो एडियाबेटिक प्रोसेस। बी नंबर एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाएगा। ए प्रोसेस इन विच नो हीट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। डेल क्यू इक्वल टू जीरो, देन डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, देन हो जाएगा डेल डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी यू। फॉर एडियाबेटिक हीट जीरो हो जाता है, हीट ट्रांसफर। रिवर्सिबल नोट करते हैं कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। एंड इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट हो जाता है दोस्तों। कह रहा है इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी फॉर एन आइडियल गैस इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आता है, डेल यू डी इक्वल टू एम सी भी डेल्टा टी। चेंज इन इंथैल्पी क्या आता है, डेल एच इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं change in internal energy in a closed system is equal to the heat transfer if the reversible takes place at the constant volume हो जाएगा। सी नंबर एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ए क्लोज सिस्टम, डेल क्यू इक्वल टू क्या हो गया, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। del W equal to du if work transfer 0। Now del W for a closed system, del W equal to PdV if V equal to constant, then PdV equal to 0, then work equal to 0। Therefore internal energy is equal to the heat transfer for a closed system। नेक्स्ट कह रहा है अंडर ए सर्टेन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू जीरो, ये हो जाता है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस जब भी एन इक्वल टू जीरो कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन देखते हैं। P1 V1 पे पावर n इक्वल टू P2 V2 पे पावर n, देन n इक्वल टू 1 हो जाता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तब P1 V1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो इट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट क्या आ रहा है इन ए फ्री एक्सपेंशन द वर्क डन एंड हीट ट्रांसफर बोथ आर जीरो हो जाएगा, सी नंबर आंसर। इन ए फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस द वर्क डन एंड द हीट ट्रांसफर बोथ आर जीरो। फ्री एक्सपेंशन क्या है, कह रहा है कि फ्री एक्सपेंशन ऑकर व्हेन the fluid is allowed to expand suddenly into a vacuum chamber through an orifice of large dimension।
In this process, no heat is supplied or rejected and no external work done. Free expansion process, हीट ट्रांसफर जीरो, वर्क ट्रांसफर जीरो एंड इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाता है। अगर पी को अगर मिनिमाइज करते हैं तो वॉल्यूम को हमको बढ़ाना होगा, इसलिए टी इक्वल टू कांस्टेंट आइडियल गैस के लिए, इंथैल्पी इक्वल टू कांस्टेंट, देन बट आपका एंट्रोपी इंक्रीज करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये हो गया स्पेसिफिक इंथैल्पी। जहाँ भी दोस्तों स्पेसिफिक लग जाएगा वो आपका सारा का सारा इंटेंसिव हो जाता है। प्रॉपर्टी में भी टू टाइप्स, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव में क्या है, तब इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर इंडिपेंडेंट ऑन द बेसिस एंड द मास ऑफ द सिस्टम। एग्जाम्पल प्रेशर, टेम्परेचर, स्पेसिफिक इंथैल्पी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एनर्जी etc। एक्सटेंसिव क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द सिस्टम। एग्जाम्पल वॉल्यूम, एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी। नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग पाथ फंक्शन क्वांटिटी क्या है, पाथ फंक्शन हीट एंड वर्क ही होता है दोस्तों, हीट है नहीं तो वर्क होगा ऑप्शन। हीट एंड वर्क आर द पाथ फंक्शन, हीट एंड वर्क आर नॉट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज बिकॉज दे आर नॉट पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन नहीं है इसलिए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है। इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द प्रोसेस इन द सिस्टम। नेक्स्ट क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, तो बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या है, ऑल द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम नॉन एज प्रॉपर्टी, जो भी हम मेजर करते हैं वो सब प्रॉपर्टी है। फोर एग्जाम्पल प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंथैल्पी, एंट्रोपी, डेंसिटी। ठीक है, दीज आर टू टाइप्स, इंटेंसिव या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, और एक हो गया एक्सटेंसिव या एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब कह रहा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, कह रहा ऑल द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी विच इंडिपेंडेंट ऑफ द मास या फिर साइज ऑफ द सिस्टम, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, थर्मल कंडक्टिविटी, डेंसिटी एंड ऑल द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, all the thermodynamic property, all the thermodynamic property which are dependent or on extent और मास ऑफ द सिस्टम, जैसे कि वॉल्यूम, मास, एनर्जी, इंथैल्पी। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे कि एक स्पेसिफिक हो गया इंथैल्पी, एक प्रेशर हो गया, ये दो जो है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। दो और तीन किस्में तो बी में बी आंसर हो जाएगा। स्पेसिफिक इंथैल्पी, प्रेशर आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज और एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी हो गया दो तरह का, एक इंटेंसिव एक एक्सटेंसिव। डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज, इंटेंसिव में होता है मतलब कि मास पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड ऑन द साइज ये मास पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि देखेंगे प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, डायनेमिक, ये सब इंटेंसिव है। एक्सटेंसिव में हो गया वॉल्यूम, मास, एनर्जी, एंट्रोपी, इंथैल्पी। ईच स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव हो गया, मैं आपको पहले बता दिया। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक इंथैल्पी etc। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, हीट जो है प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम नहीं है। हीट इज अ ट्रांजिएंट एनर्जी, हीट क्या है, ट्रांजिएंट एनर्जी है एंड नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। इट इज अ पाथ फंक्शन, ये क्या पाथ फंक्शन है, दिस एनर्जी इज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, थ्रॉटलिंग इज द प्रोसेस, थ्रॉटलिंग क्या है, थ्रॉटलिंग आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है, बी नंबर आंसर।
Throttling is an irreversible process. A throttling process is defined as the process in which there is no change in enthalpy from a state 1 to a state 2. There is no work done del W equal to 0. Enthalpy will remains constant. Temperature of a gas is produced due to kinetic energy of the molecule. बी नंबर हो जाएगा। कह रहा है टेम्परेचर ऑफ द गैस इज प्रोड्यूस ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस particles is the proportional to the absolute temperature of the gas, and all the gases at the same temperature have the same average kinetic energy. Kinetic energy को क्या होगा 3/2 kT। kinetic energy directly proportional to the temperature। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is the temperature at which a system goes under the reversible isothermal process without the heat transfer? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ केल्विन स्केल क्यू बाई क्यू टी इक्वल टू टी बाई टी टी, टी इक्वल टू हो जाएगा टी टी इंटू क्यू बाई क्यू टी। ये हो गया 273.16 हो गया इंटू क्यू बाई क्यू टी। फ्रॉम द एबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट द हीट ट्रांसफर आइसोथर्मली बिटवीन द टू एडियाबैटिक बॉडीज decreases if the temperature decreases. Here Qt is the thermometric property. Therefore, from the above equation, Q is having a smaller value than the T. Also lower, the smallest possible value of Q is 0 and the corresponding T is 0. Thus, the temperature at which a system undergoes the reversible isothermal process without transfer of heat is called absolute zero temperature. Next question. A perfect gas of 27 degree is heated at a constant pressure till its volume is double. Then the final temperature is, इसका फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा 327 डिग्री। सी नंबर आंसर। T1 इक्वल 27 डिग्री सेंटीग्रेड। देन हो जाएगा 273 प्लस 27 300 केल्विन। T2 निकालना है। V1 इक्वल टू भी, अब V2 इक्वल टू भी लिखते हैं क्योंकि डबल कर दिया गया है। अब P इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या कहता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाता है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तब V1 बाई V2 इक्वल टू T1 बाई T2। T2 इक्वल टू क्या V2 बाई V1 इंटू T1। ये जो है आपका पुट द वैल्यू इन द इक्वेशन 1, ये वाला हम इक्वेशन पुट करते हैं तो T2 इक्वल टू 2V बाई V इंटू 300 इक्वल टू 600 कैलोरी रहता है। और कैलोरी चेंज करने के लिए 273 घटा देते हैं 600 में, तो 327 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है, ये आपका डेंसिटी जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। फिर से दोस्तों डिस्क्रिप्शन। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ए प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द मास शेप साइज ऑफ द सिस्टम इज नॉन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम मास एंट्रोपी एंथैल्पी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, ये सब जो है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, ए प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द मास शेप एंड साइज ऑफ द सिस्टम कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंट्रोपी etc। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर इज इक्वल टू 1.41। The ratio of two specific heat of air, that is specific heat at constant pressure Cp to the specific heat at constant volume Cv, gamma equal to Cp by Cv equal to 1.41। गामा फॉर CO2 के लिए 1.28 हो जाता है। गामा फॉर स्टीम के लिए 1.33। ये याद रखना होगा दोस्तों,
gamma for CO2 के लिए 1.28, gamma for steam 1.33 and gamma for air 1.41. Very important. Next question, density of water is maximum at 4 degrees centigrade. C number answer. Figure shows that the volume of the water is minimum and the density is maximum at the 4 degrees centigrade temperature. What is the work done for the constant volume process? constant volume process work done 0 हो जाता है. As per question, dV equal to 0, V equal to constant, V1 equal to V2 equal to V, वर्क बराबर क्या 1 से 2, P V2 माइनस V1, P V माइनस V, ये होता है 0. When there is no heat exchange between two bodies that are the same temperature, they are said to be in thermal equilibrium. When there is no heat exchange between two bodies that are at the same temperature, they are said to be in thermal equilibrium. Electrical equilibrium क्या है? When potential difference is 0. Which one of the following represent open thermodynamic system? ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए क्या हो गया? सेंट्रीफ्यूगल पंप. क्लोज सिस्टम क्या है? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वाल्व, बॉम्ब कैलोरीमीटर, मोटर कार बैटरी, प्रेशर कुकर, ये सब क्लोज सिस्टम का हो गया. ओपन सिस्टम क्या हो गया? मोटर कार इंजन, आईसी इंजन का एनी व्हील जैसे वाटर टरबाइन, गैस टरबाइन, स्टीम टरबाइन, बॉयलर, कंडेंसर, ये सब हो गया आपका ओपन सिस्टम. पंप या कंप्रेसर, नोजल, डिफ्यूज, ये सब ओपन सिस्टम है. आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो गया? थर्मोफ्लास्क या फिर कैसरोल और थर्मोडायनेमिक इन्वर्स, ये सब आपका आइसोलेटेड हो गया. कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस. बी नंबर आंसर. कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब V इक्वल टू C प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड आइसोकोरिक और आइसोबैटिक प्रोसेस. Work is 0 for the isocoric process in closed system. In open system work equal to माइनस VdP, नन जीरो हो जाता है ओपन सिस्टम के लिए. क्लोज सिस्टम के लिए वर्क ट्रांसफर जीरो हो जाता है एट आइसोकोरिक प्रोसेस. कर एन आइडियल गैस ऑफ 27 डिग्री इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर टिल द वॉल्यूम बिकम्स 3 times. व्हाट इज द व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द गैस? ये जाए 627 डिग्री सेंटीग्रेड. बी नंबर. T1 27 दे दिया है डिग्री सेंटीग्रेड, देन कैल्विन हो जाए 300 कैल्विन. प्रेशर कांस्टेंट है. देन V2 इक्वल टू 3V1, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, V1 बाई V2 इक्वल टू T1 बाई T2. देन T2 इक्वल टू T1 बाई T1 इंटू V2 बाई V1, 300 गुना 3, 900 कैल्विन हो गया. जब सेंटीग्रेड में करेंगे तो 273 घटाएंगे तो 627 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज आल्सो नोन एज, इसे कहते हैं एंथैल्पी. टोटल हीट ऑफ सब्सटेंस को कह रहा है टोटल हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज आल्सो नोन एज एंथैल्पी. स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या हो गया? U प्लस पी डी भी, इसको हम लोग जूल पर केजी में मापते हैं. एंड एंथैल्पी क्या हो गया? U प्लस पी भी कैपिटल में, इसको जूल में मापते हैं. कहने का मतलब है दोस्तों, स्पेसिफिक का मतलब कब हो जाता है? जब हमेशा मास से डिवाइड करते हैं. देखिए दोस्तों, यहाँ U प्लस पी भी को केजी से डिवाइड किए तब जूल पर केजी हो गया है, और केजी से डिवाइड नहीं किए तो कैपिटल U प्लस कैपिटल पी भी ये जूल में रह जाएगा. इंथैल्पी इज कंपाउंड प्रॉपर्टी मीन्ड फॉर द सॉल्विंग सर्टेन टाइप ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रॉब्लम, जनरली फ्लो प्रोसेस. कैपिटल H इक्वल टू कैपिटल U प्लस पी भी फॉर टोटल मास M, स्मॉल h इक्वल टू U प्लस पी भी फॉर यूनिट मास के लिए.
Next question, the universal gas constant in SI unit is equal to the 8314. नेक्स्ट कर रहा है इसके बारे में, द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इन एसआई यूनिट इज इक्वल टू द 8314 जूल पर केजी पर मोल पर केल्विन, या फिर 8.314 किलो जूल पर केजी पर मोल पर केल्विन. द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जनरली डिनोटेड बाय RU of gas is the product of the gas constant and the molecular mass of the gas. R equal to mr, where molecular mass m क्या है, molecular mass of the gas expressed in the kg रोल. R क्या है, the gas constant. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द प्रोसेस इन विच नो हीट इंटर और लीव्स द सिस्टम इज कॉल्ड आइसेंट्रोपिक हो जाता है. The process in which no heat enters or leaves the system is called isentropic process or adiabatic process. The temperature of the gas changes as the work is done at the cost of the internal energy. In this process, the change in internal energy is equal to the work done. Del Q इक्वल टू क्या होगा, du प्लस डेल W. यहाँ कह रहा है कि डेल Q जीरो है, देन du इक्वल टू माइनस डेल W. Reverse adiabatic process is called isentropic process. Molar specific heat of an ideal gas depend molar specific heat of an ideal gas depend the number of atom in a molecule. D नंबर आंसर. कह रहा है, molar specific heat of an ideal gas depend on the number of the atom in the molecule. The molar specific heat capacity C of a substance is defined as the amount of heat Q that is required to rise the temperature del T of 1 mole of the substance by 1 degree or 1 Kelvin. Since the specific heat constant has the unit kilojoule per kg per Kelvin, then the unit of the molar specific heat is kilojoule per mole per Kelvin, or C equal to Q by N into delta T. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द कंप्लीट स्टॉपिंग ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन टेक्स प्लेस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ये हो जाएगा आपका 0 केल्विन पे हो जाता है. ए नंबर आंसर है, एट 0 केल्विन माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड द पार्टिकल्स स्टॉप मूविंग and all disorder disappear. Thus, nothing can be colder than the absolute zero on the Kelvin scale. Next question. In the thermodynamic system, a process in which volume remains constant is called, जहाँ वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट कर दिया उसको आइसोकोरिक कहेंगे. आइसोकोरिक नहीं तो आइसोमेट्रिक कह देंगे. बी नंबर आंसर. In a thermodynamic system, a process in which volume remains constant is called isometric process or isochoric process. For closed system, volume equal to constant, del W equal to 0, work transfer 0. This process is governed by Gay-Lussac law. Next question कह रहा है, the heat absorbed or rejected during the polytropic. polytropical क्या हो जाएगा, गामा माइनस एन बाई गामा माइनस 1 पे पावर 1/2 इंटू वर्क डन. ये आपका सी नंबर हो जाएगा, गामा माइनस एन बाई गामा माइनस 1 इंटू वर्क डन. पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या है, इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोसेस इन द प्रैक्टिसेस. दिस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज सेट टू बी गवर्न बाई the law PV power n equal to constant, where n is the index which can vary from 1 less than n less than gamma. Q 1 से 2 R T2 माइनस T1 R T2 माइनस T1 प्लस बाई गामा माइनस 1
प्लस P1 V1 माइनस P2 V2 बाई n-1। यहाँ से देखिएगा Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या हो जाएगा, R। Cp बाई Cv इक्वल टू गामा होता है Cv इंटू गामा माइनस 1 इक्वल टू R, देन Cv इक्वल टू R बाई गामा माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा तो ओवरऑल Q1 से 2 क्या हो गया, गामा माइनस n बाई गामा माइनस 1 इंटू वर्क डन हो जाएगा। At what temperature the reading in the Fahrenheit and centigrade scale are same? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। अब कैसे ये देखते हैं दोस्तों, गिवन दैट C इक्वल टू F दे दिया है क्वेश्चन में, और फार्मूला जानते हो C/F इक्वल टू C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। तो देन यहाँ से पुट कर देंगे C इक्वल टू C कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -40 डिग्री आ जाएगा। An ideal gas of the 27 degree centigrade is heated at constant pressure till volume is double. The temperature of the gas will then, ये हो जाए 327 डिग्री सेंटीग्रेड, ये पहले भी बता चुके क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम इज दैट हीट सप्लाइड एट इंथैल्पी कह दिया है तो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, सॉरी दोस्तों। बी नंबर, the enthalpy is H equal to U plus PV, taking the total differential dH equal to du plus PdV plus VdP. From this first law, du equal to del Q minus del W, del Q is the thermal energy added, del W is the work done on the system by the surrounding, del W इक्वल टू PdV, del DH इक्वल टू del Q माइनस PdV प्लस DP, del H इक्वल टू del Q प्लस VdP at constant pressure dP इक्वल टू 0। सो DH इक्वल टू del Q इंटीग्रेट टू del H इक्वल टू Q। The change in enthalpy for an isobaric process is equal to the thermal energy added to the system। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाए मास, जो मास पे डिपेंड करता हो। ठीक है दोस्तों, प्रॉपर्टी क्या, एन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। द टाइप ऑफ प्रॉपर्टी क्या, एक एक्सटेंसिव हो गया, एक इंटेंसिव हो गया। एक्सटेंसिव हो गया दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सिस्टम। इंटेंसिव में दिस प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सिस्टम। एक्सटेंसिव क्या है, दैट इज मास, वॉल्यूम, एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी। इंटेंसिव में क्या हो गया, प्रेशर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, ड्राइनेस फ्रैक्शन, टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। एसआई यूनिट कभी भी क्या था, केल्विन में मापेंगे। SI unit of the temperature is Kelvin and other unit is Fahrenheit and centigrade. Relationship between the different temperature unit C/5 equal to F minus 32/9 बराबर K माइनस 273/5। In an isothermal process, internal energy of the gas molecule remains constant हो जाता है। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट पे। In an isothermal process, internal energy of the gas molecule remains constant, U equal to function of temperature हो जाता है। Next question, if the change in the density occur at the constant temperature, then the process is called isothermal. If the change in the density occur at the constant temperature, then the process is called isothermal process। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इन थ्रॉटलिंग प्रोसेस विच ऑफ द पैरामीटर रिमेंस कांस्टेंट, इंथैल्पी कांस्टेंट हो जाता है। क्या है डिस्क्रिप्शन, इफ अ स्टीम इज अ थ्रॉटल इट्स इंथैल्पी रिमेंस कांस्टेंट एंड प्रेशर ड्रॉप टेक्स प्लेस। दिस इज द हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड इज यूज टू रिड्यूस द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट इन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वर्क डन ड्यूरिंग द थ्रॉटलिंग प्रोसेस del W इक्वल टू 0। Throttling occur in the small area, it may be considered as an adiabatic process, del Q equal to 0।
It is an irreversible adiabatic process. It is always expand due to the pressure change. थैंक यू दोस्तों।